Very good morning to all of you, beta. Today I'm going to do quick revision of acid, bases, and salt. Okay. So first of all, beta, in exam, what all thing they will ask you? First, they will ask you what is the definition of acids. Okay. Acid is a compound which when dissolved in water yields hydronium ion. Okay. Can you see it is giving which ion? H plus. But actually H plus react with water to give you hydronium ion. Now, what is the base? Base is a substance which will react with hydronium ion of an acid to give you salt and water. There is a thin line of difference between base and alkali. Alkali are also bases, but they are soluble in water. Yeah, water soluble. But if in exam, if they ask you define alkali, so what you have to say, alkali is nothing but a compound which when dissolved in water will give hydroxyl ion as the only negative ion. Clear? In MCQ or fill in the blanks, they may ask this question, beta. What is an alkali? So alkali when dissolved in water will give you which ion? They will give you option hydronium, OH minus. What will be your answer? OH. OH minus. Then beta types of acid we are going to study beta. Okay. Organic acid means these are the acids which are derived from what? Living organism. Living organism and what we have? Citric acid. Okay. This is lemon. Oxalic acid in tomato. Tartaric acid in tamarind. Acetic acid is also known as vinegar. Okay. Formic acid is found in bread end. So any acid which is found in living organism, we call them as what? Organic acid. Organic acid are generally weak acid. They are generally. Then we have inorganic acid. In MCQ में याद रखना बेटा, inorganic acid को बेटा वो लोग क्या बोलते हैं बेटा? मिनरल एसिड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओके, कौन कौन है? HCl, H2SO4, HNO3 and carbonic acid. Clear? Now in MCQ, what type of question they will ask you? They will give you 3 this and 1 this. Identify which is mineral. Or they will give you 3 this and 1 this. Identify which of them is organic. Have you understood what type of question they will ask? Then beta we have hydra acid and oxy acid. Hydra acid means what? It will have hydrogen and one non-metal other than oxygen. So can you see beta here there is HCl, HBr and HI. Oxygen hai kya isme? So we call it as hydra acid. What is oxy acid? It will have hydrogen and oxygen and any other non-metal. So can you see all these beta? They have hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen and one other non-metal. In exam now, what type of question they will ask you? They will give you 3 hydra acid and 1 oxy acid, or they will give you 3 oxy acid and 1 hydra acid, and they will tell you to identify accordingly. Are you all getting it? Hello. Right. Now, acid are further classified into what beta? You know, strong acid and weak acid. How to identify which is strong? How to identify? Yeah, they will dissociate completely beta, but I'll give you one trick. That trick you have to remember. Alright, chalo. Strong acid में कौन होगा बेटा? Okay, सोनू. First class biryani I ate. सोनू first class biryani I ate. So बेटा इसमें कौन कौन है? सोनू means what बेटा? Tell me. Yeah. Okay. So this will be H2SO4, HNO3, HF, HCl. Are you getting it बेटा? HBr. HI. So all these are which acid beta? Strong acid. A strong acid will dissociate completely. बाहर मत करो, ये याद रखोगे तो आ जाएगा आप लोग. सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आए. Clear है? Then beta, apart from this any acid will be there, then it will be which acid? Weak acid. चलो बेटा अभी मैंने अगर ऐसा लिखा, come on, tell me. एसिटिक एसिड बेटा इसमें सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी है क्या? देखो नहीं है ना, तो वीक एसिड. हक्कू फॉर्मिक एसिड, इसमें सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी है क्या? H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसमें सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी है क्या? ये लोग कौन है? वीक एसिड. अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली. सो विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट? विच पार्टिकल आर प्रेजेंट? आयंस ओनली. क्या होगा यहाँ पर? आयंस ओनली. यहाँ पे वीक एसिड में क्या क्या होगा बोलो बेटा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ. आयंस एंड मॉलिक्यूल्स both. Are you getting it beta? Hello. Now similarly we go to beta strong base. How to know which are strong base? Strong base में क्या याद रखने का? लीना के आरबीसीज. क्या याद रखने का? लीना के आरबीसीज. याद रहेगा बेटा? मतलब क्या? ए भाई, LiOH, right? Potassium hydroxide. Or beta, whatever you want to remember beta. Look, friendship is also there, but we don't study. लीना के आरबीसीज. ओके फरार एच में हम लोग ऐसा बोलते हैं. लीना की रबड़ी सस्ती एंड फ्रेश. व्हाटएवर यू वांट टू रिमेंबर बेटा. सो दिस
तो these all are what बेटा? Only strong. Strong. Strong में क्या होगा बेटा? They dissociate completely. Okay, ions only. They will have what? Ions only. इसके अलावा मैंने कोई भी लिखा तो क्या होएगा मैन? टेल मी. वीक बेस. चलो बेटा, अगर मैंने लिखा MgOH2, क्या इसमें लीना के आरबीसी है क्या? ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड ऑल बेटा. आर यू गेटिंग इट बेटा? अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स. सो व्हेनेवर दे आस्क पार्टिकल्स, देन दिस इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू राइट. ओके, अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? 3 दे विल गिव फ्रॉम हियर, 1 दे विल गिव फ्रॉम हियर, व्हिच इज वीक? आर यू विल यू बी एबल टू डू इट? हियर आल्सो 3 फ्रॉम हियर एंड 1 फ्रॉम हियर, विल यू बी एबल टू डू इट? चलो बेटा, ये हो गया तुम्हारा अल्कलाई. व्हाट बेस? जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है उसी को अल्कलाई बोलते हैं. हाँ, तो ये इंसॉल्युबल होता है, ये सारे इंसॉल्युबल है. वीक अल्कलाई आर इंसॉल्युबल एक्सेप्ट फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. हाँ. या सो बेटा यहाँ पे देख रहा बेटा, कंटेन्स आयंस ओनली, आयंस ओनली. यहाँ पे बेटा क्या था? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ. अरे वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड dissociate completely. Here it is what? Partially. High H plus ion. Here it will be low H plus ion. Clear? Then बेटा we go to what बेटा? Basicity of acid. बेटा एग्जाम में आपको मैं बता देता, if I आपको ना well I'll tell you what is basicity of acid. बेसिसिटी मतलब वो कितने बेस के साथ रिएक्ट होकर वाटर फॉर्म करेगा, कितने बेस के साथ रिएक्ट होगा. ओके. हाँ. अच्छा बेटा, इफ आई राइट बेटा, ये देखो HCl HNO3, इसमें कितना H दिखता है मैन? ओनली 1 H ना. सो दे आर मोनोबेसिक, मतलब वो एक बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा. H2SO4. अरे यार बराबर आ जा. H2CO तो कितनी है H है रे सांबा? बोलो बेटा 2. क्लियर? तो कितना होगा बोलो बेटा? डाई बेसिक. कितने H है इसमें बेटा? बोलो. अरे 3 ना. तो क्या होगा? अच्छा, एग्जाम में बेटा भी आपको ने एक क्वेश्चन पूछेगी बेटा, एक ये बहुत है यहाँ पे जो आता है ये बहुत बार. एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में कितने H है? बोलो 4, लेकिन वो एक ही H देगा. सो दिस इज ऑल्सो मोनोबेसिक. प्लीज, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है. ऑल दो देर आर 4 H, इट विल गिव यू ओनली 1 H. दैट इज व्हाट बेटा? मोनोबेसिक. इज दिस क्लियर? क्या बेटा? नाइस ना बेटा. ओके चलो. या इज दिस क्लियर? हेलो. राइट. चलो. हाँ बोलो. लेट अस गो टू एसिटिक एसिड इज मोनोबेसिक. हियर बोथ ऑफ यू. ना बेटा, एसिड का क्या होगा? बेसिसिटी. तो बेस का क्या होगा? हाँ, तो मोनो एसिडिक बेस जिसमें एक OH होगा. दिस इज मोनोबेसिक, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक. ओके, मोनो एसिडिक बेस. दिस इज व्हाट बेटा? मोनो एसिडिक बेस के लिए क्या होगा बेटा? एसिडिटी. और एसिड के लिए क्या होता है बोलो बेटा? बेसिसिटी. ओके, क्लियर है? अच्छा, ये इसमें कितना OH है बोलो ना? हाँ, तो डाई. इसमें कितना है बोलो बेटा? 3. तो क्या हो जाएगा बोलो? ट्राई. आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग इट. हेलो. सो लुक बेटा, ऑल दिस आई गिवन टू यू. लुक, कम ऑन. Look for beta. Basicity is what? Number of H plus ion produced when acid is dissolved, or number of hydroxyl ion with which it can react to produce what? Water. Is this clear? तो चलो बेटा, इसमें कितना H था बेटा? 1 था. इसमें अब 4 था भले, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना. एसिडिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो इट हैज 4 हाइड्रोजन, बट इट गिव्स ओनली 1 हाइड्रोनियम आयन. ये H2SO4 में ये कोई रिएक्शन नहीं पूछेगा. यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट हैज 2 H प्लस. ट्राई बेसिक में फास्फोरस कितना H देगा? 1 2 3. गेटिंग इट? चलो, एसिडिटी ऑफ बेस. how many OH? 1. How many OH? 2. How many OH? So monoacidic, diacidic, triacidic. Any difficulty clear? Now बेटा we directly go to the next part. Theory. डायरेक्टली बेटा आपका जो अभी मेन पार्ट है ना, वहां पे मैं चला जाता बेटा. यहाँ पे देखो Arrhenius theory क्या बोलता है? Acid is a substance which when dissolved in water it will give you which ion? H plus. Base is a substance which will give you what? There is one more theory, Lowry-Bronsted. What does the Lowry-Bronsted theory says? Acid is proton. अरे एसिड को पानी में डालेगा तो it will give H plus or not? Tell me. बेस क्या करेगा? H plus लेगा. अच्छा, एक सिंपल बताओ क्या? Ammonia is a base or not? Tell me बेटा, you studied in ammonia chapter, so it can accept this proton, right? So therefore it is what? Basic. Why ammonia is basic? We can explain on the basis of Lowry-Bronsted theory. Is this clear? Now, preparation of acid. By these two are non-metal के अंदर बेटा मैंने क्या ऐड किया? हाइड्रोजन. So reduction. HCl is an acid.
देखा ना, इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन ऐड किया। अच्छा ये फिर बेटा एनी ऑक्साइड, ए व्हाट इज एन एसिडिक ऑक्साइड? एनी ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इफ इट फॉर्म्स एसिड देन इट इज व्हाट? SO2 को पानी में डालो, SO3 को डालो, राइट, P2O5 को डालो। Then beta we can prepare from what beta? Remember beta, non-volatile acid gives you volatile acid. Where you have studied this? HCl and nitric acid. Are you getting it? So it can be prepared from salt using non-volatile acid to give you volatile acid. Temperature should be less than 200. And then by oxidation of non-metal in nitric acid, we have studied. Beta, this reaction is very important. This is the only reaction where non-volatile acid gives you volatile acid. Volatile acid gives you non-volatile. Got it? Any difficulty till here? Hello? Pakal? Clear? चलो फिर बेटा ये preparation of base. Metal oxide are bases. ये metal oxide why they are base? Because when dissolved in water they form what? Base. तो बेटा ये metal oxide देख इनको पानी में डाला तो देखो base बना के नहीं बोलो, base बना के नहीं बोलो. Then beta they can be formed by double decomposition reaction. Can you see all hydroxide are formed? Decomposition of salt, metal nitrate from calcium to copper. When you heat them, we get metal oxide NO2 and O2. अब बेटा इधर पे आ जाओ. व्हाट इज एन इंडिकेटर बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एसिड में बेटा अलग अलग इंडिकेटर का कलर आपको पूछेंगे. लिटमस पेपर in neutral form it is purple, in acid it will become red, in base it will become blue. Methyl orange in acid it becomes pink, and in alkaline it becomes yellow. ठीक है ना बेटा? राइट, अल्कलाइन में एल आता है तो देख येलो में भी एल आता है, ऐसा याद रहेगा बेटा. अल्कलाइन में येलो आएगा. फिनोफ्थलीन बेटा एसिड में कलरलेस एंड इसमें क्या हो जाएगा? पिंक. बट इफ आई टेक अल्कलाइन फिनोफ्थलीन देन इट इज पिंक, बट इन एसिड इट विल बिकम कलरलेस एंड इन अल्कलाइन इट विल बिकम पिंक ही रहेगा. ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड. ओके, सो which scale? pH scale. What is pH scale? Potence of hydrogen or power of hydrogen. एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा. Which is the indicator used to determine acidity or basis, acidic nature or basic nature? And what is the name of that indicator? Universal indicator. अभी ये भी पूछते हैं, what is universal indicator? It is a mixture of organic dyes. It is a mixture of organic dye. बेसिकली बेटा ये पेपर होता है, उसको हम लोग अलग अलग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस में डालेंगे ना तो इट विल शो डिफरेंट कलर. इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. फर्स्ट तो बेटा दे विल आस्क, अभी पीएच रेंज होता है बेटा, बिटवीन 0 to 7 इट इज व्हाट? एसिडिक. 7 to 14 it is basic, and exact 7 is neutral. Now what all type of question they can ask on the basis of this? They will give you the value of pH and they will tell you whether it is strong acid, weak acid, neutral, strong base, weak base. तो आपको ना ये रेंज याद रखना है बेटा. ओके, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर नाम याद रखना. डोंट राइट pH इंडिकेटर, व्हाट विल राइट? यूनिवर्सल इंडिकेटर. ओके, आपको अगर बेटा इफ द pH इज बिटवीन 1 and 2 देन इट विल बी, तो आपको ऐसा देगा A हैज pH 1, B हैज pH 3. ओके, तो स्ट्रॉन्ग. फिर बाद में यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? बिटवीन 2 to 6 इट विल बी व्हाट? इफ pH वैल्यू इज बिटवीन 2 to 6 इट इज व्हाट? वीक गैस. एग्जैक्ट 7 होगा तो, अभी देखना, एग्जैक्ट 7 होगा तो बिटवीन 8 to 12 वीक अल्कली और वीक बेस, एंड बिटवीन 13 to 14 स्ट्रॉन्ग. तो आपको मैंने अगर ऐसा वैल्यू दिया, बट एक का pH 1 है, एक का 5 है, एक का 7 है, एक का 9 है और एक का 11 है और 12 है या 13 है, चलो तो आप बता पाओगे कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है? हेलो. अच्छा, दे विल आल्सो आस्क ऑन द बेसिस ऑफ कलर. समटाइम्स दे विल गिव यू नो pH पेपर शुड बी रेड कलर, तो रेड कलर मींस स्ट्रॉन्ग एसिड. ऑरेंज और येलो देन इट विल बी व्हाट बेटा? वीक एसिड. कलर पे भी आएगा एट द कॉलम. ग्रीन होगा तो न्यूट्रल, ब्लू वीक, वायलेट स्ट्रॉन्ग. बेटा इसमें देखा ना कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. पहले तो पीएच के वैल्यूज पे आ सकते हैं, देन बेटा कलर पे आ सकते हैं. आर यू गेटिंग इट? ओके, एंड वैल्यूज पे आ. अब बेटा है ना ये सॉल्ट. सॉल्ट बेटा कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के. नॉर्मल सॉल्ट में बेटा यू वोंट सी एनी एच. नॉर्मल सॉल्ट में यू वोंट सी एनी, इट इज फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्वेंट आयन. ठीक है, एसिडिक सॉल्ट में क्या होना चाहिए? एच होना जरूरी, और बेसिक सॉल्ट में क्या होना चाहिए? ओवर. अब देखो इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इधर.
Can you see, beta? Normal salt, they are formed by what, beta? Hello. Complete. Right ना बेटा? H plus ion from an acid by basic radical. हाँ, इसमें कहां पे भी H दिख रहा है क्या? इल्ले. एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा बेटा? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन बाय बेसिक. देखना बेटा, इसमें H दिख रहा है कि नहीं? सब में है. तो दे आर एसिडिक. बेसिक सॉल्ट में बेटा क्या होगा बेटा? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड ऑफ बेस विद एसिड. सब में OH दिख रहा है कि नहीं? बेटा एग्जाम में पूछते गिव एग्जांपल ऑफ बेसिक, तो बच्चे लोग क्या लिख देते? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. नहीं चलेगा. उस पे क्या आपका बेसिक सॉल्ट क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट से बनता है बेटा. समझ में आया ना? तो PbOH NO3 ऐसा होना चाहिए. अभी एग्जाम में बेटा मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, सुनो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एसिड है, वो आपको, सपोज इफ आई गिव यू एसिड, सो हाउ मेनी नॉर्मल, हाउ मेनी एसिडिक सॉल्ट इट कैन फॉर्म. ऐसा क्वेश्चन आएगा. एसिडिक सॉल्ट एंड हाउ मेनी नॉर्मल सॉल्ट इट कैन फॉर्म. चलो आ जाओ ना, बोलो ना. तो बेटा मैं बताओ, क्या एसिडिक सॉल्ट करने के लिए क्या ढूंढेगा? उसमें से एक H माइनस करने का. क्या माइनस करने का? अगर वो H माइनस करने के बाद अगर उसमें H बनता बचता है तो इट विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट. चलो, I example I'm giving you ना bro. सपोज बेटा आई गिवन यू HCl HNO3, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, छत्री कु. इन सब में कितना H है? छत्री कु में ना ये वाला H नहीं देखने का, एक एक ही है ना. तो बेटा अगर मैं इसको बेस के साथ रिएक्ट करूंगा तो H बचेगा क्या? अरे बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है बेटा. तो नो एसिडिक सॉल्ट. अंडा अंडा अंडा. नो एसिडिक. अच्छा, ये कितना नॉर्मल सॉल्ट बना सकता है कि नहीं? हाँ, वन नॉर्मल सॉल्ट. बराबर है. चलो बेटा, इफ आई गिव यू, मस्त लिखा है रे बेटा, H2SO4, अरे H2CO3, तो इसमें से एक H माइनस करूंगा तो एक H बचेगा कि नहीं? बोलो ना. तो वन एसिडिक सॉल्ट एंड वन, तो टोटल सॉल्ट कितना बनाएगा ये? टोटल ऐसा भी क्वेश्चन हाउ मेनी सॉल्ट दिस फेलो कैन. अरे मैं येडे कुठे काय रे, इकडे मस्त दे बघ ना राजा, काय करतोस? झोपतोस मेल्या वर्गात? अं? Whatever. चलो बेटा, आ गया बेटा. ये बहुत मस्त है बेटा. टोटल सॉल्ट इसने कितना बनाया? टोटल, टोटल कितना बनाएगा? दो. फॉस्फरिक एसिड में कितने एच है रे सांबा? तीन. तो एक एच माइनस करेगा तो हमने एसिडिक सॉल्ट इट विल फॉर्म टू, एंड हमने नॉर्मल सॉल्ट वन. तो टोटल कितना बनेगा? टोटल यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? टोटल, टोटल यहाँ पे कितना बनता है तुम्हारा? यहाँ पे वन, वन, वन. यहाँ पे टोटल टू टू. और ये टोटल कितना बनाएगा? Oh my God, nice thing. I'll take a snap of this man and I will. सिमिलरली आपको क्या पूछेगा मैं? हेलो. ए, इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा? बोलना भाई. हाँ. Yes, this boy यार. चलो, अभी बेटा मैं आपको कौन सा सॉल्व दूंगा? बोल बेटा. ए, मैं आपको बेस दूंगा और मैं क्या आपको बोलूंगा? हाउ मेनी बेसिक सॉल्ट यो ब्रो, एंड हाउ मेनी नॉर्मल, एंड देन टोटल, देन टोटल. कम ऑन, टेल मी. हे भाई, NaOH होएगा, KOH होएगा, NH4OH होएगा. एक एक OH निकाल दे तो हमने बेसिक सॉल्ट 0 0 0 0, नॉर्मल सॉल्ट 1 1 1 1 1, तो टोटल 1 1 1 1 1. राइट. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना देगा? एक ये देगा. बराबर है. कॉपर ऐसा दो वाले रहेंगे तो बेटा समझा ना, 1 1 एंड 1 1, तो टोटल 2 2. एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना है रे भाई? हाँ, तो ये दो देगा, ये एक देगा. टोटल वाव, वाव.
चलो बेटा, अभी ये चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो बच्चों को लगता है वो है क्या? सॉल्ट प्रिपरेशन। क्या है? क्या बोलो बेटा? दो बच्चे मिसिंग है। कौन? ओके, कोई बात नहीं बेटा। नहीं नहीं, जाने दे बेटा, कोई तू बुलाने जाएगा तो फिर तीन मिसिंग हो जाएंगे। ठीक है ना बेटा? कहाँ पर है वो लोग? हाँ, तो फिर जाने दो बेटा। हाँ बस, आप लोग अपना काम कर लो ना। आपको ये पता बता देता हूँ मैं, सॉल्व प्रिपरेशन आता है सबको। हाँ, बिल्कुल एक काम करा लो। क्या प्रैक्टिकल में पढ़ेगा? आता है कि नहीं आता है? हाँ, पहले ये दिमाग में डाल दो, आइए ना। ठीक है बेटा, मैंने ऐसा सब ट्रिक दे के रखा हुआ है बेटा। ओए, सुन ले, तेरे को भी प्रॉब्लम हो रहा था ना हीरो? हाँ, ये ले। तू बोल रहा था ना तेरे को सॉल्युबल इनसॉल्युबल है, तो देख, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल, ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आगे होगा पब, एक्सेप्ट आगे होगा पब। आगे होगा पब मतलब क्या? Ag का क्लोराइड इनसॉल्युबल, Hg का क्लोराइड इनसॉल्युबल, Pb का क्लोराइड इनसॉल्युबल। इसके अलावा कोई भी क्लोराइड होगा तो क्या होगा? सॉल्युबल। याद रहेगा ये ट्रिक याद रहेगा। जो जो ऑल क्लोराइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट ये लोग, ये सब तुम्हारा क्या होएगा मैन? इनसॉल्युबल। ये सब कौन है बे? इसके अलावा मैंने कोई भी क्लोराइड लिखा तो क्या होगा बोलो बेटा? सॉल्युबल। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल, सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल, मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्युबल, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्युबल, कॉपर क्लोराइड सॉल्युबल, Fe क्लोराइड सॉल्युबल। आर यू गेटिंग इट और नॉट? चलो फिर बेटा, तेरे लिए ही बता रहा, तू बोला हाइड्रो सॉल्युबिलिटी का प्रॉब्लम है ना तेरे को? हाँ जी। ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल, ऑल सल्फेट आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पंजाब का बाग, पंजाब का बाग, बाग। तो कौन है पंजाब का बाग में? पीबी का सल्फेट इनसॉल्युबल, कैल्शियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल, सिल्वर का सल्फेट। बस, बाकी कोई भी सल्फेट होगा तो चलो बेटा, अगर मैंने कहा सोडियम सल्फेट सॉल्युबल, राइट बेटा, कॉपर सल्फेट सॉल्युबल, फेरस सल्फेट सॉल्युबल, एनी अदर सल्फेट सॉल्युबल, जिंक सल्फेट सॉल्युबल। अच्छा, एक आप चीज नोटिस कर रहे हो क्या बेटा? ये पीबी का सल्फेट एक इंसोल्यूबल आ रहा है, पीबी का क्लोराइड भी इंसोल्यूबल है, बट सोल्यूबल इन हॉट वाटर, सोल्यूबल इन हॉट वाटर में सोल्यूबल होगा, वो याद रखना। क्लियर है? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ए विच इज द क्लोराइड विच इज इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर बट सोल्यूबल इन हॉट वाटर, है क्या होगा बोलो? पीबीसी। क्लियर है? अभी कोई भी क्लोराइड और सल्फेट याद रहेगा ना बेटा? हाँ। हाँ, तो बेटा अभी आ जाओ। सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सारा सॉल्ट सोल्यूबल होता है, सोडियम पोटेशियम अमोनियम का ऑल सॉल्ट आर एक्सेप्ट फॉर देयर बाइकार्बोनेट, एक्सेप्ट फॉर देयर, अच्छा, आर सोल्यूबल। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन? एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। बस। अरे राजा आजा, ठीक है, चलो बेटा। अबे तो हम लोग सेलिब्रिटी की किसकी बात करें? पानी के अंदर की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटी। आर यू गेटिंग इट? पानी की बात, पानी पानी। आज ब्लू है पानी पानी। ठीक है बेटा, वो पानी। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट इन वाटर, कॉमन सेंस है ना बेटा। ऑल दी सॉल्युबिलिटी आई एम टॉकिंग अबाउट इन वाटर। या बेटा, दैट नाइस शॉट मैन। या चलो बेटा, आगे बढ़ते बेटा, इधर आ जाओ। ए, इसका क्या क्या सोल्यूबल रहेगा? क्या क्या सोल्यूबल है? सब कुछ, मतलब मैं तुमको बता देता हूँ। हाँ, वो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड,
कार्बोनेट, बराबर है, इन सबका क्या रहेगा, सोल्यूबल। हाँ, बाकी सबका क्या रहेगा बोलो, बाकी किसी का भी हाइड्रोक्साइड इन तीनों का छोड़ के सब क्या रहेगा, इनसॉल्युबल। तो सपोज मैंने ऐसा बोला आपको, कॉपर ऑक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, कॉपर कार्बोनेट इनसॉल्युबल, कॉपर सल्फाइड इनसॉल्युबल, लेड ऑक्साइड इनसॉल्युबल, लेड हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल, लेड कार्बोनेट इनसॉल्युबल, आर यू गेटिंग इट और नॉट? लेड सल्फाइड सब, बाकी सबका इनसॉल्युबल रहेगा, समझ में आ गया? हाँ, बट अभी बात, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, all nitrates are soluble, all nitrates are soluble। तो बेटा सबका soluble होगा, तो लेड नाइट्रेट भी क्या होगा, soluble। ऑल नाइट्रेट आर, तो लेड का एक ही soluble सॉल्ट है लाइफ में, कौन है, लेड नाइट्रेट। याद रहेगा ये, हो गया, बस अपना काम हो गया, अपना काम हो गया। हाँ, क्या याद नहीं रहेगा, ये सब तो मैंने ट्रिक तो देखा, याद आएगा ना, सब पंजाब का बाग ये सब याद रहेगा, आगे होगा पब, सब ट्रिक तो दे दिया ना भाई, ऐसा कैसा बात करता है, ठीक है। चलो अभी देख बेटा, एकदम शॉर्टकट बताते, आ जाओ ना प्लीज। देख बेटा, अभी ये टेबल खाली आपको याद रखना है, जो रिएक्शन बताते ना, रुकना पहले ये बताने तो देना राजा, ये दे, देख ले। देख बेटा, बस इतना याद रखोगे ना तो कोई भी सॉल्व आप करना पाओगे, इतना याद रखोगे तो आप कोई भी सॉल्व करना पाओगे। चलो बेटा, कोई भी एक मैं तुमको बता देता, देखो कितना मेथड है, पहला डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या क्या है बोलते हैं, डायरेक्ट, फिर क्या है, प्रेसिपिटेशन, just mark, न्यूट्रलाइजेशन में भी आप टू थिंग, टाइट्रेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन, क्या बोल के दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या है? चलो बेटा, आई टेल यू ब्रो, आ जाओ सभी लोग, सुन लो ना। ए, ये यहाँ पे देखो बेटा, आपको खाली राजा आजा, इधर इधर इधर, खाली ना डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में FeCl3 बोला तो व्हाट विल दे आर गोइंग टू डू, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन Fe प्लस क्लोरीन, खत्म, FeCl3 मिलेगा, बैलेंस हम लोग बाद में करेंगे। और कोई भी सल्फाइड हो, कोई भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में बेटा वी विल हैव ओनली FeCl3 एंड एनी अदर एनी सल्फाइड। मैंने ऐसा बोला PbS, समझ में आ रहा है कि नहीं, ZnS, FeS, CuS, कोई भी सल्फाइड होएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट, समझ में आएगा? हेलो, बोलो ना, डायरेक्ट, क्लियर है? ऑल सल्फाइड एंड विच वन बेटा, ओनली व्हाट बेटा, FeCl। अब बेटा ये बहुत मस्त है, प्रेसिपिटेशन, ऑल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ऑल इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सेप्ट सल्फाइड, क्योंकि सल्फाइड को हम लोग ने कैसे बनाया, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, कैसे बनाया बेटा? तो चलो बेटा आ जाते हैं, इनसॉल्युबल है लेकिन प्रेसिपिटेशन का एक लॉजिक होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सोल्यूबल प्लस सोल्यूबल आपको क्या देगा, इनसॉल्युबल प्लस सोल्यूबल, और यहाँ पे बेटा सब सॉल्ट होने चाहिए, क्या होना चाहिए, एसिड वैसिड मत लेना, बच्चे लोग एसिड ले लेते, गड़बड़ कर देते हैं, दोनों सोल्यूबल सॉल्ट होके क्या बनाने आपको, इनसॉल्युबल, कर पाओगे? चलो बेटा, मैंने अगर आपको ऐसा लिख दिया, मैंने बोला PbSO4, तो पहला अगर मैंने बोला प्रिपेयर PbSO4, मैंने एग्जाम में बोल दिया, तो आप पहला दिमाग लगाओ, बेटा यहाँ पे देख, दिमाग लगा, PbSO4 बोलो, पंजाब का बाग का सल्फेट है ना ये, तो सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में दोनों क्या लेना पड़ेगा, सोल्यूबल। ये राजा झोपू ना को सूट रहे, ये देख वहां से टपली दे दो, टपली दे दो, हाँ चल, दोनों सोल्यूबल लेना पड़ेगा। अभी लेकर लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है लाइफ में, कौन है, लेड नाइट्रेट, तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे बोलो ना, लेड नाइट्रेट। अब बेटा ये बाजू वाला, इस ये वाला पार्ट कभी भी किसका ले लेने का, सोडियम या पोटेशियम का ले लेने का, किसका ले लेने का, तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, Na2SO4, ये भी सोल्यूबल है ना, ऑल सोडियम सॉल्ट आर सोल्यूबल, तो अभी मेरे को क्या मिलेगा बेटा, देख NaNO3, और ये भी सोल्यूबल है कि नहीं, देख बेटा ये सोल्यूबल है, और ये PbSO4 अपना क्या है, इनसोल्यूबल, और ये दोनों सोल्यूबल था कि नहीं बोलो, तो प्लीज बेटा ये ट्रिक याद रहेगा, लेड का कभी भी इनसॉल्युबल सॉल्ट बोलेगा तो एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है, लेड नाइट्रेट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हेलो, अच्छा आफ्टर प्लीज ये दिमाग में डालो, कोई भी इनसॉल्युबल होगा तो बेटा एक्सेप्ट फॉर सल्फाइड क्या करने का बोलो, प्रेसिपिटेशन, सल्फाइड होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन,
आर यू गेटिंग इट? क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं आपको बता देता हूं, अभी है ना, हम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज आप लोगों ने पढ़ा रहेगा पहले कभी। अरे आ जाना राजा, खुल जा। इतना रुक गया है। आ जा बेटा, ओए देखो बेटा, रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा है ना बेटा। करीना ने कार मांगी, अल्टोज एंड फरारी। फिर भी है, फिर भी, फिर भी है क्यूट। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सिल्वर प्लेटेड ऑडी। जान दो बस, ऑडी बॉडी को बाद में जान दो। अच्छा बेटा, मैं तुमको ये बता देता हूँ, ये दोनों बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? टाइट्रेशन। इनका सॉल्ट, ए राजा इकड़े बगना। अबे चमन झिंगे इधर देख। देखो टाइट्रेशन, टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं? एसिड प्लस अल्कली लेते हैं। क्या लेते हैं? अल्कली मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, तो इट विल गिव यू व्हाट बेटा? सॉल्ट एंड वाटर। तो बेटा ये सोडियम पोटेशियम और कौन आएगा यहाँ पर बेटा? और एक आएगा अमोनियम का कोई भी सॉल्ट होगा। ये तीनों के लिए हम लोग क्या करेंगे बोलो ना? टाइट्रेशन। अब बेटा यहाँ पर आ जाते बेटा, टन 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 टन, ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग याद रहेगा बेटा। ये क्या याद रखोगे बेटा? मंगल भवन, मंगल जिंदाबाद, जिंदाबाद। फीलिंग, फीलिंग। तो बेटा अभी देख रहे हैं यहाँ पे क्या? एम जी दिखा, ए एल दिखा, झिंक दिखा, फीलिंग। इन लोगों के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा? मेथड डिस्प्लेस। इनका कौन सा सॉल्ट होगा लेकिन? सोल्यूबल, क्योंकि इनसोल्यूबल के लिए तो अपने पास क्या है? प्रेसिपिटेशन। तो व्हाट मेथड वी आर गोइंग टू यूज? डिस्प्लेसमेंट मान। डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करेंगे? ये तुम्हारा ये जो एक्टिव मेटल है, जो भी एक्टिव मेटल है, एक्टिव मेटल प्लस, प्लस व्हाट? एसिड, दिल 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 डाइल्यूट विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। याद रखना ये कौन सा सॉल्ट होगा? सॉल्युबल, क्योंकि वी आर डूइंग व्हाट? तो अभी आप बोलोगे सर, ओ सर ये लोगों का क्या होएगा? हम लोग ने यहाँ पे किसको इग्नोर कर दिया था बोलो? किस किस को इग्नोर कर दिया था बोलो? कैल्शियम का सॉल्युबल सॉल्ट के लिए क्या करेंगे? पीबी का सॉल्युबल सॉल्ट के लिए क्या करेंगे? और कॉपर, बस। तो बेटा कौन लोग बच गया? कैल्शियम, पीबी एंड कॉपर। इनका बेटा सॉल्युबल सॉल्ट, हाँ कौन सा सॉल्ट? सॉल्युबल। तो इनके लिए हम लोग क्या करते हैं मालूम है क्या? न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में भी हम लोग कौन सा करेंगे? न्यूट्रलाइजेशन में भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? स्टार्टिंग में हम लोग क्या लेंगे? इनसॉल्युबल बेस लेंगे। क्या लेंगे? इनसॉल्युबल बेस। बेस, हाँ बेटा, इनसॉल्युबल बेस में कौन कौन हो सकता है बोलो? मतलब मेटल का ऑक्साइड, समझ में आ रहा है? मेटल का कार्बोनेट, या मेटल का हाइड्रोक्साइड। उसको बेटा आप लोग किसके साथ रिएक्ट करेंगे? एसिड के साथ, और आपको क्या देगा? सॉल्ट। और ये कौन सा सॉल्ट देगा बोलो बेटा? सॉल्यूबल। प्लस क्या देगा? वाटर। क्या देगा? वाटर। और कार्बोनेट होगा तो कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगा, अगर कार्बोनेट यूज किया है तो। मस्त बन गया रे, मस्त एकदम। क्या बना है बेटा? वाओ, नाइस। ठीक है। स्लीपिंग क्या? ए, छी, 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 छी। ओ पेइंग अटेंशन, वाओ नाइस। नया मीम देखा कि नहीं? नहीं देखा वो नया मीम? वैसा बोलता है छी छी। क्या यार, छी। जा बे, छी छी। ओके, ओके मैंने पीडीएफ इसको अभी सेव कर दिया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। बेटा ये ट्रिक समझा कि नहीं? ए सुनो ना बेटा, अभी देख बेटा, आप लोग आप कोई भी सॉल्व बना सकते हैं, आ जाओ। आओ ना। देख बेटा यही मैंने दिया है, देख बेटा। ये राजा, ये देख, ये देख, ये टेबल देखेगा ना, इसमें सब आ गया।
ये देख, ये सोल्यूबल सॉल्ट रहेगा तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, एसिड प्लस अल्कली, बेस नहीं अल्कली, वाटर सोल्यूबल बेस विल गिव यू मी व्हाट, सॉल्ट एंड वाटर। अरे ये देख, ये सोल्यूबल सॉल्ट, तो इसके लिए मैं क्या लूंगा बेटा, इनसोल्यूबल बेस। खाली फर्क क्या है बोलो बेटा, यहाँ पे इनसोल्यूबल बेस प्लस एसिड, फिर अपने को क्या देगा, ये भी वही चीज देने वाला है, सॉल्ट एंड वाटर। और यहाँ पे सब सोल्यूबल सॉल्ट है, याद रखना। और ये देख, मंगल जिंदाबाद फीलिंग आ गया कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या कर देते बोलो बेटा, मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इतना याद रखने का, क्लियर है। चलो अभी हम लोग, आप कोई भी सॉल्ट बना पाओगे, चलो अभी है ना, बुक रेडी रखो, सॉल्ट बनाना कितनी दे जाओ, बताओ, ठीक है। जाते आप सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो आ जाओ, फिर जो सजनों आपकी स्क्रीन पर हम लोग स्टार्ट करने वाले, आ जाओ चलो फटाफट। टेन 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 टेन, come on। अच्छा बेटा, ये आपने देखा ना यहाँ पे डायरेक्ट, इसमें सोल्यूबल प्लस सोल्यूबल विल गिव यू इनसोल्यूबल प्लस सोल्यूबल, याद रहेगा। फोटो ले लो, अभी जाओ। चलो अभी बेटा ये इरेज कर दूं क्या साहब, करो ना। हाँ बेटा, इसमें एक खाली बताने दो, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने 9th में भी पढ़ा था ना बेटा, जिसमें डॉट वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। फिर डेली क्विसेंट क्या रहता है बेटा, अरे सब्सटेंस वाटर सॉल्युबल सॉल्ट व्हिच कैन केप्ट इन एटमॉस्फेयर, व्हाट दे विल डू बेटा, दे विल एब्सॉर्ब मॉइस्चर टिल दे मेल्ट, राइट ना, टिल दे मेल्ट, तो चेंज ऑफ स्टेट होगा। एग्जांपल याद रखना ये। एन एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या होता है बेटा, व्हेन यू कीप देम इन एटमॉस्फेयर दे लूज देयर वाटर मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली और पार्शियली। चलो नाउ यू हैव टू डू ऑल दिस। आपको क्या क्या बताने का, मेथड और रिएक्शन, मेथड एंड रिएक्शन, कम ऑन। हाँ खुद ही करो ना फटाफट, खुद से जाओ करके जाओ। या चलो पहला वाला बेटा स्टार्ट करें क्या, ए हीरो बोल, पहला वाला का क्या होगा बोल, क्या बोला है बनाने के लिए, चल तेरे से। हाँ, लेड नाइट्रेट ना। हाँ, तो लेड का सब सॉल्ट इनसोल्यूबल रहता है, एक ही सोल्यूबल है, लेड नाइट्रेट। तो ये कौन सा सॉल्ट है बोल बेटा, सोल्यूबल है ना। तो सोल्यूबल के लिए तू क्या प्रेसिपिटेशन करेगा, कुछ भी, फिर PbNO3। ए राजा, ए राजा, ए राजा आजा। पीबी सोल्यूबल सॉल्ट है ना बेटा, तो लेड का बेटा सोल्यूबल सॉल्ट बनाने के लिए बेटा तुमको बताया था ना, काकू, काकू पीबी कौन था तुम्हारा, कैल्शियम कॉपर। और पीबी का सोल्यूबल सॉल्ट बनाने का है तो क्या करने का, भूल गए क्या, न्यूट्रलाइजेशन, ये देखा है काकू पीबी, ठीक है बेटा। उसके लिए क्या करेगा, इनसॉल्युबल बेस लेने का, कोई भी इनसॉल्युबल बेस ले ले लेड का, क्या लेने का है तेरे को बोल, अरे यार चला जा। चलो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, PbO प्लस, अभी नाइट्रेट है तो HNO3, देख इन क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, कम ऑन, डन डन, क्या गया, बिकॉज लेड का +2 इज मोर स्टेबल देन +4, ओके, या या ओके। एंड विच मेथड इट इज बेटा, न्यूट्रलाइज this sir, come on, this girl here, you tell me बेटा, lead chloride पहला बोल soluble है या insoluble, all chloride are soluble except, आगे होगा पब, तो पीबी का क्लोराइड है ना बेटा, तो क्या है बोल, अरे पूछा है क्या वो लोग ने, ये कोल्ड वाटर की बात चालू है। हाँ, ये जब भी वो लोग रिएक्शन पूछते हैं तो दे आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड वाटर। हाँ, तो इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो मैंने लिखा है भी ना बेटा, क्या करेगी बोल, प्रेसिपिटेशन,
समझ में आया क्या बेटा? तो प्रेसिपिटेशन के लिए तेरे को दोनों सोल्यूबल, लेड का एक ही सोल्यूबल सॉल्ट है लाइफ में, कौन है बे? और यहाँ पे एसिड मत लेना बेटा, सोल्यूबल सॉल्ट NaCl, HCl नहीं। अरे सोल्यूबल प्लस सोल्यूबल सॉल्ट बोला था, यही मिस्टेक होता है तुम लोगों से। समझ में आया क्या? छू छू बराबर। आजा, कल आना तू बेटा। लेड ए पोटेशियम सल्फेट, दिस गर्ल यार, दिस गर्ल यार। हाँ बोल बेटा, पोटेशियम सल्फेट सोल्यूबल सॉल्ट है। हाँ तो क्या करेगी बोल, K2 सोल्यूबल सॉल्ट है। और मैंने बोला था सोडियम पोटेशियम अमोनियम के लिए कभी भी हम लोग क्या करते हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, एसिड प्लस अल्कली। तो अल्कली कौन है बे, KOH। एसिड तेरे को कौन लेने का है, सल्फेट बोला तो कौन सा एसिड, H2SO4। सॉल्व वाटर टू बैलेंस हो गया। चले बेटा इधर आजा, क्या करेगी बोल, कैल्शियम सल्फेट सल्यूबल है, कैल्शियम सल्फेट। पंजाब का बाग का सल्फेट इनसॉल्युबल, येडी। इतना ट्रिक देने के बाद भी नहीं आता है तेरे को। कैल्शियम सल्फेट इनसॉल्युबल है ना बेटा, इनसॉल्युबल है तो दोनों तेरे को सॉल्युबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। किसी का भी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं आता है तो क्या लिख देने का उसका, नाइट्रेट। ऑल नाइट्रेट आर सॉल्युबल, तो क्या करेगा, कैल्शियम नाइट्रेट। और यहाँ पे भी सॉल्युबल ही लेना है, एसिड नहीं लेना है। Na2SO4 है, वेरी गुड। क्या मिल जाएगा बेटा, 2NaNO2। और ये नाम क्या हो गया बोलो बेटा, प्रेसिपिटेशन। चलिए आजा ये झुंगे, इधर आजा। चलिए हाँ इसका बाकी ना टर्न, ए तेरा बाकी है, चल। ये कौन है, लेड कार्बोनेट। लेड के सारे सॉल्ट क्या होते हैं बोल बेटा, इनसॉल्युबल ही है। तो ये इनसॉल्युबल बनाने का तो एक ही ट्रिक है, क्या, वेरी गुड, प्रेसिपिटेशन। ये लेड का एक ही सॉल्युबल सॉल्ट है, क्या लेगी, और यहाँ पे सोडियम का ले लेंगे। अरे वाह बेटा, वाह 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 वाह। क्लियर है, इजी है बेटा। ये सॉइल प्रिपरेशन फुकट मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये। चले तेरा बाकी ना टर्न, दिस गर्ल यार। हाँ बोल बे, क्या करेगी, सोडियम क्लोराइड। रुक जा, उसको तेरा आता है ना, अभी घूम फिर के आएंगे ना। बोल बेबी। अबे सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम का कोई भी सॉल्ट होएगा तो क्या करने का, टाइट्रेशन। बेटा ध्यान दो, इधर ना इजिली बताया तो फिर ठीक है। आ जाओ, क्या बनेगा, NaCl। टाइट्रेशन में हम लोग क्या लेंगे, अल्कली प्लस एसिड। नो 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 नो, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली फॉर मंगल भवन, मंगल जिंदाबाद फीलिंग, समझा ना ये। टाइट्रेशन। चलो आजा, तेरा ये बेड़ा। कैल्शियम कार्बोनेट डिस्प्लेसमेंट, पहला मेरे को बता, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम और कार्बोनेट सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल है। इस सॉल्युबल सॉल्ट का प्रकार तो फिर आ जाओ ना, प्रेसिपिटेशन, प्रिपिटिशन में शॉर्टकट लिख देता हूँ। चलो, सीए का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं पता तो इज्जत से क्या लिख देने का, नाइट्रेट लिख देने का। यहाँ पे क्या ले लेंगे, सोडियम कार्बोनेट। कम ऑन ब्रो, चलो डन डन, चलिए ये। Well, I'm going to show you, man. Hey, shall I go ahead, man? Hello. 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 ये सेव कर दो, ये ले। चलो, come on. ये we are very less time. चल 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 चल। अच्छा मैं अभी थोड़े एक्सेप्शन, हाँ यहाँ से लेता बेटा, अमोनियम को जान दे, यहाँ से लेते हैं। आजा राजा, जिंक सल्फेट। अबे तू ये बे, ये बोलना, जिंक सल्फेट पहला सल्यूबल है कि इनसॉल्युबल है, क्या ये पंजाब का बाग का सल्फेट है, नहीं, मतलब ये सल्यूबल है, सल्यूबल है। और ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग में आता है, नहीं, सल्यूबल में प्रेसिपिटेशन करेगा। सब हो गया तेरा, डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। मंगल जिंदाबाद फीलिंग का सॉल्युबल सॉल्ट आएगा तो क्या करने का, डिस्प्लेसमेंट। मेटल एंड इट विल गिव यू व्हाट, ZnSO4 + H2 है।
गुआमा बता दे तेरा फेरस सल्फाइड है, सल्फाइड। अरे वेरी गुड बेटा, वाह। जहाँ पे सल्फाइड, ऑल सल्फाइड आर व्हाट बेटा, कॉम्बिनेशन। वेरी गुड दिस बॉय। अच्छा बेटा क्या करेगा ये वाला? अरे एफ ये नहीं, इसका टन है FeCl3। हाँ फेरिक मतलब FeCl3 होता है। हाँ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो बैठ जा बेटा, ये डायरेक्ट। चल अभी तू मेरे को बता, ये Fe क्लोराइड है, रुक जा, इसका टर्न है, बोल बे। हाँ तो FeCl3 होगा ना ये। अरे ये हाँ लिख रहा है ना वो, बराबर चलना अभी फटाफट, 2 ही मिनट बाकी है, बोल। हाँ क्या है? हाँ ये बेटा ये मंगल जिंदाबाद फीलिंग का सोल्यूशन FeCl3 नहीं, ये तो मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो Fe+HCl सब ट्रिक तुमको बैठा टेके नहीं मैं बोलो ना, इसी बता के दिया तुमको सॉल्व प्रिपरेशन, है कि नहीं बेटा? हाँ तो ठीक है, बताया ना। ये आया क्या तेरे को, ये तुम्हें डाउट है बोल। मेरे को डाउट है। हाँ तो ओके अभी बोल, अपने सब्जेक्ट को कैसा लगा? ठीक है ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन NH4OH का न्यूट्रलाइजेशन में भी कौन सा टाइट्रेशन? हाँ और कैल्शियम क्लोराइड क्या है? कैल्शियम क्लोराइड पंजाब का पानी, पंजाब का पानी का सल्फेट है क्या? पंजाब का सल्फेट आगे होगा तो अपना क्लोराइड है क्या? सल्यूबल है। आप सेकंड टॉक्सिक ऑफ क्या था? टॉक्सिक ऑफ का न्यूट्रलाइजेशन और में डी सल्यूबल देखो लेगा कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ अयो समझ में आ गया? हाँ अरे राजा ये क्या होगा तेरा? न्यूट्रलाइजेशन न्यू, और क्या करेगा? तू कार्बोनेट भी ले सकता था यहाँ पे, कार्बोनेट लेता तो एक्स्ट्रा क्या मिलता था? कार्बन डाई। तो बहुत हो गया। ये अमोनियम सल्फेट का तुम्हारा कौन सा था टाइट्रेशन था बेटा? यहाँ पर हो गया। आप लोगों को क्या मिलेगा यहाँ पे टाइट्रेशन में? NH4OH लेंगे और क्या लेंगे बेटा? H2SO4 एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बेटा, टेल मी। अमोनियम सल्फेट। So that's all for today. I hope all of you have understood this beta. Okay, चलो बेटा, bye bye everybody. बंद कर दो, हो गया? Come on, हो गया, बता दिया।